जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभयात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। लोक प्रसिद्धि से और शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। सुनने और पढ़ने से वास्तविक ज्ञान होता ही नहीं। आत्मस्वरूप का सद्गुरु कृपा से अनुभव ज्ञान ही इस राग रूप काम को मारने का एकमात्र उपाय है। कठोपनिषद में कहा है, सब भूतों के अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वास्तव में काम में अपना कोई बल नहीं है। यह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि, मन और इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है, तथा जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं आ जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए काम को अत्यंत प्रबल माना गया है और दुर्जय कहा गया है। परंतु काम का यह दुर्जयत्व तभी तक है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर बुद्धि, मन और इंद्रियों को अपने वश में न कर ले। आत्मबोधम or spiritual consciousness is to be awakened. Following in its wake, the body, the senses, mind and intellect have all to serve Atman. The basic desire automatically vanishes, the little self dwindles away, the real self emerges. Bliss infinitude becomes patent, never again to be clouded. Life shines in the glory of Atman. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Supnishtasu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishnarjun Samvade Karma Yogo Nam Trityo Adhyayah। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకము 43। ఈ కర్మయోగంలో చిట్ట చివరి శ్లోకం, యావం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానం ఆత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహు కామరూపం దురాసదాం। ఈ విధముగా బుద్ధిని మించిన అనగా సూక్ష్మమైన బలవత్తరమైన అత్యంత శ్రేష్టమైన ఆత్మను తెలుసుకొని బుద్ధి ద్వారా మనసును వశపరుచుకుని, ఓ మహాబాహో, నీవు ఈ కామమనే దుర్జయ శత్రువును సంహరించు। లోక ప్రసిద్ధి చేతను శాస్త్రము ద్వారా విని కూడా ప్రజలు ఆత్మ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైందని అంగీకరించట్లేదు। వినడం చేత, చదవడం చేత వాస్తవ జ్ఞానం కలగదు। ఆత్మస్వరూపుడైన సద్గురువుని కృపచే కలిగిన అనుభవ జ్ఞానమే ఈ రాగరూప కామమును సంహరించు ఒకే ఒక ఉపాయము। కఠోపనిషత్తులో చెప్పబడింది ఏమనగా, అన్ని ప్రాణుల లోపల దాగి ఉన్న ఆత్మ వానికి కనిపించదు,
కేవలం సూక్ష్మదర్శి అయిన పురుషుడే అత్యంత తీక్ష్ణము మరియు సూక్ష్మమైన బుద్ధిచే దానిని దర్శించగలడు. నిజానికి కామంలో తనదంటూ ఏ బలము లేదు. అది ఆత్మ యొక్క బలముచే బలవత్తరమైన బుద్ధి మరియు ఇంద్రియములలో నిలుచుటకై స్థలమును సంపాదించిన కారణమున వాటి బలముతో బలము కలిగినదై ఉన్నది. ఎప్పటి వరకు బుద్ధి మనసు ఇంద్రియములు తన ఆత్మవశంలోకి రావో అప్పటి వరకు ఆత్మ యొక్క బలము కామమునకు లభిస్తూనే ఉంటుంది. అందుచేత కామమును అత్యంత ప్రబలమైనదని అనుకోవడమైనది, అంతేగాక దుర్జయమైనదైన అని కూడా చెప్పబడినది. కానీ కామం యొక్క ఈ దుర్జయత్వము ఆత్మ తన యొక్క స్వరూపమును గుర్తించి మనసు బుద్ధి ఇంద్రియములను తన అధీనములు గావించుకొనంత వరకు మాత్రమే ఉండును. ఇది శ్రీమద్ భగవద్గీత అను ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విద్య మరియు యోగశాస్త్ర విషయం అయిన శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదములోని కర్మయోగము అనబడు 3వ అధ్యాయము ఇంతటితో సమాప్తము. హరి ఓం తత్సత్, హరి ఓం తత్సత్, హరి ఓం తత్సత్. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 43. ഏവം ബുദ്ധി പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്ഥഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ ആത്മാവിനെ, അതായത് സൂക്ഷ്മവും ശക്തവും പരമശ്രേഷ്ഠവുമായ ആത്മാവിനെ അറിയുകയും ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുക. ജനപ്രിയമായ പ്രശസ്തിയിൽ നിന്നും വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവിൽ നിന്നും പോലും ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിനെ ഏറ്റവും മികച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അനുഭവവും ആത്മജ്ഞാനവും മാത്രമാണ് ഈ വികാരാധീനമായ ആഗ്രഹത്തെ കൊല്ലാനുള്ള ഏകമാർഗം. കഠോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് അവയ്ക്ക് ദൃശ്യമല്ല. സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അത് കാണാൻ കഴിയൂ. വാസ്തവത്തിൽ കർമ്മത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ശക്തിയില്ല. അത് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനാൽ അത് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ശക്തിപ്പെട്ട ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയേക്കാൾ ശക്തമാണ്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നതുവരെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവയിലൂടെ പ്രവൃത്തി തേടുന്നത് അഥവാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹത്തെ വളരെ ശക്തമെന്ന് കണക്കാക്കുകയും അജയ്യം എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അജയ്യത ആത്മാവ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ കീഴടക്കുന്നതുവരെ മാത്രമാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ യോഗയും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ രൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മവിദ്യയും യോഗശാസ്ത്രവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇത് കർമ്മം എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള 3ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഹരി ഓം തത്സത്, ഹരി ഓം തത്സത്, ഹരി ഓം തത്സത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 3, श्लोक 43. अशा प्रकारे बुद्धीच्या पलीकडे असलेल्या आत्म्याला म्हणजेच सूक्ष्म, शक्तिशाली आणि अत्यंत उन्नत जाणून आणि बुद्धीद्वारे मनावर नियंत्रण ठेवून, हे महाबाहू, तू कामाच्या रूपात या भयानक शत्रूचा वध कर. सार्वजनिक कीर्ती आणि शास्त्रामधून ऐकूनही लोक प्रत्यक्षात आत्म्याला सर्वोच्च मानत नाही. खरे ज्ञान ऐकूनही आणि वाचूनही मिळत नाही. परंतु सद्गुरूंच्या कृपेने आत्म्याच्या खरा स्वरूपाचा अनुभव आणि ज्ञान हाच आसक्ती स्वरूपात या वासनेला मारण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
कठोपनिषदात म्हटले आहे, सर्व भूतामध्ये लपलेला हा आत्मा त्यांना दिसत नाही. केवळ चतुर पुरुषच त्यांच्या अत्यंत तीक्ष्ण आणि सूक्ष्म बुद्धिमत्तेने ते प्रकट करू शकतात. वास्तविकतेत कामामध्ये स्वतःची कुठलीही शक्ती नाहीच. ते आत्म्यापेक्षा बलवान बनले आहे, कारण त्याला बुद्धी, मन आणि इंद्रियामध्ये राहण्याकरता एक स्थान मिळालेले आहे, जे आत्म्याच्या शक्तीने बळकट होतात. आणि जोपर्यंत बुद्धी, मन आणि इंद्रिय तिच्या नियंत्रणाखाली येत नाहीत, तोपर्यंत वासना त्यांच्याद्वारे आत्म्याची शक्ती प्राप्त करीत असतात. म्हणूनच वासना अत्यंत शक्तिशाली मानली जाते आणि तिला अजिंक्य म्हटले जाते. परंतु वासनेची ही अजिंक्यता केवळ तोपर्यंतच टिकते जोपर्यंत आत्मा त्याचे खरे स्वरूप ओळखत नाही आणि बुद्धी, मन आणि इंद्रियांना त्यांच्या नियंत्रणाखाली आणत नाही. जय गुरुदेव. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम. एही प्रकार बुद्ध सा फराक माने सूक्ष्म बेसी बलवान आ अतिश्रेष्ठ आत्मा के चिन्ह क आ बुद्ध सा मौन के अपना अधीन में क लिया. हे महाबाहो, अहाँ ऐ काम रूप दुर्जय शत्रु के मार दियो. लोक प्रसिद्धि या शास्त्र सब के सुनियो क लोक सब आत्मा के वस्तुतः सर्वोत्तम नहीं मानैत अछि. मात्र सुनबा आ पढ़बा सँ वास्तविक ज्ञान नहीं भेटैत अछि. आत्मस्वरूप पर सतगुरु केर कृपा सँ प्राप्त भेल अनुभव ज्ञाने एहि राग रूप काम के मारऽ के एकमात्र उपाय अछि. कठोपनिषद में कहल गेल अछि, सब भूत सभक भीतर नुकायल ई आत्मा प्रत्यक्ष रूपे नहीं देखाइत अछि. केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष अत्यंत तीक्ष्ण आ सूक्ष्म बुद्धि सँ एकरा प्रत्यक्ष कऽ सकैत छथि. वास्तव में काम के अपन कोनो बल नहीं होइत अछि. ई तऽ केवल आत्माक बल सँ बलवान बनल अछि, किएक तऽ ई आत्मा सँ प्राप्त ऊर्जा सँ चलैत बुद्धि, मन आ इंद्रिय सब में अपन ठिया बना लैत अछि आ ओहि सभक बल सँ अपने बलशाली बनि जाइत अछि. जा धरि बुद्धि, मन आ इंद्रिय अपन नियंत्रण में नहीं आबैत अछि, ता धरि आत्माक जे बल अछि, ओहि बल के प्रवाह काम में होइत रहैत अछि आ ताहि कारण एकरा प्रबल मानल जाइत अछि, दुर्जय कहल जाइत अछि. मुदा ई कामक दुर्जयत्व मात्र तखने धरि रहैत अछि जखन धरि आत्मा अपन वास्तविक स्वरूप के चिन्ह क बुद्धि, मन आ इंद्रिय सब पर अपन अधिकार स्थापित नहीं कऽ लैत अछि. ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम 3 अध्याय. इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या आ योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक 3 अध्याय संपूर्ण भेल. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.